Hi guys, so moving on to the next questions. These are pretty simple as compared to the previous ones. I have a 2D array, 3 cross 4. It means I have 3 one-dimensional array. Each 1D array consists of how many elements? 4 elements. So first, this is your 0th 1D, this is your first 1D, this is your 0th, first and second 1D array. Each 1D array consists of how many elements? Each 1D consists of 4 elements. Assume that the base address starts from 100. So 4, 8, 12, this is 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Right. So I am assuming size of int as 4 byte. Now, what is A? I have told you so many times that in case of 2D array, A means what? Base address of 0th 1D array, right? And if you write +1, it means you move to the base address of your first 1D array. Fine. So since A is what? A is what? Base address of your 0th 1D, and it consists of how many elements? 1, 2, 3, 4. Size of one element is 4 bytes. So A plus 1, a jump of 16. You will move to the base address of first 1D, and the base address of first 1D starts from 116. So A plus 1 is 116. I am assuming base address starts from 100. Right. Now address of A. And I have already told you what in my address of A. Address of A where the entire 2D array is stored. An entire 2D array is stored at 100 address, and it consists of 12 elements. Right. The size of one element is 4 byte. So if you say address A plus 1, it will move the base address of your second 2D and second 2D, or base address of the first 2D. If this I assume as 0th 2D, so it starts from 148. So it will be 148. I hope it is clear, right? So A is nothing but base address of your 0th 1D. When you say +1, you move to the base address of first 1D, and the base address of first 1D starts from 116. When you say address of A means I am talking about the entire 2D array. +1 means next address is 148. So address of A plus 1 is 148. Right. Now moving on to the second question. It says char star u. There is a pointer char star u, and you initialize that pointer with the string %d slash n. So what do you mean by this? You have a string %d slash n, and string ends with 0. Null. So let's suppose the base address starts from 100. So this is 101, 102, 103, and 104, and your u is pointing at 100. So when you write u is equal to, when you initialize the string, it means that u is containing the base address of your string %d slash n. So it means u is pointing at 100, right? Then you are saying u plus plus. So now your pointer moves to what? 101. After that again u plus plus, your pointer moves to 102. Fine. Now your pointer is pointing at 102, and in printf मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ से एड्रेस होता है वहाँ से लेके एंड तक मैं पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ जब तक कि नल नहीं है। लेकिन यहाँ पे 102 -2 कह रहा है, तो मतलब दो एड्रेस पीछे आ जाओ। मैं फिर से 100 को देखता हूँ, मैं फिर से 100 पे आ गया। तो अब मैं 100 को, तो 100 पे अगर हूँ तो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या बन गई? मेरी स्ट्रिंग बन गई printf %d slash n, 300. So it will print 300, right? So देखो यार कितना खूबसूरत क्वेश्चन। दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो char star u is equal to %d slash n। तो मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज कराया विद द स्ट्रिंग %d slash n। तो मेरे u जो पॉइंटर है वो स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। u की वैल्यू हो गई 100, u प्लस प्लस करूंगा तो 101 पे आ गया, दोबारा u प्लस प्लस करूंगा तो 102 पे आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में, जब तुम पहले वाली सीरीज के क्वेश्चन चेक करोगे, जहाँ भी मेरा पॉइंटर पॉइंट करता है वहां से लेके ऑटोमेटिकली एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है जब तक कि नल नहीं आता। पर मेरा u पॉइंट कर रहा है 102 पर, ये -2 भी है, तो मैं दो एड्रेस पीछे जाके चेक करूंगा। दो एड्रेस पीछे के 100, तो अब यहाँ से लेके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है, तो %d slash n हो गया। अब कॉमा 300, तो 300 को प्रिंट कराने के लिए मेरा ये %d है, तो आंसर आ गया 300। कोई डाउट नहीं? थैंक यू। Now moving on to the next question.
कैर str इज इक्वल टू यश, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है यश, स्ट्रिंग की एंडिंग नल से, एड्रेस 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 0, तो मेरा str जो है वो मेरे एरे का नाम है, और एरे का नाम क्या होता है, बेस एड्रेस होता है, तो कहां पे पॉइंट कर रहा है 1 पे। अब कैर स्टार s इज इक्वल टू str, तो मतलब मेरे एक s पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है वहां पे 1 पे, बिकॉज़ s इज इक्वल टू str है। अब ये लिखा हुआ है s प्लस 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 2, अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट नहीं है। अगर ये प्री इंक्रीमेंट होता तो मेरा पॉइंटर 2 पे आता, फिर मैं उसके आगे प्लस 2 देखता तो मेरा h प्रिंट होता, पर ये s प्लस प्लस है, यानी मेरा पॉइंटर अभी कहां पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे ही पॉइंट कर रहा है। प्लस 2 करूंगा तो क्या होगा, प्लस 1 प्लस 2 कहां पे आ जाऊंगा, 3 के एड्रेस पे आ जाऊंगा, और जहां पे मेरा पॉइंटर पॉइंट करता है वहां से लेके एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है, जब तक कि नल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, एस एच, राइट। अगर मान लो ये s प्लस प्लस ना होके अगर ये होता प्लस प्लस s प्लस 2, तो आंसर क्या आता, तो अगर ये होता प्लस प्लस s प्लस 2, तो मेरा str पॉइंट कर रहा है, s पॉइंट कर रहा है 1 पे, प्लस प्लस s करूंगा तो कहां पे आ जाऊंगा मैं, 2 पे आ जाऊंगा। अब यहां से अगर मैं प्लस 2 देखूंगा तो प्लस 1 प्लस 2 यहां पे आ जाऊंगा, और फिर यहां से अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा h। तो अगर s प्लस 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 2 है तो मेरा आंसर आ रहा है sh। अगर प्लस प्लस s प्लस 2 होता तो मेरा आंसर आता सिर्फ और सिर्फ h। और अगर मेरे को तुम एक चीज और बताओ, अगर इस s प्लस प्लस की जगह पे अगर str प्लस 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 2 होता या प्लस प्लस str प्लस 2 होता, तो तुम बोलते सर इस केस में आंसर आता sh और इस केस में आंसर आता h, पर तुम ये भूल जाते हो बेटा that str is an array, you cannot modify the base address of the array। तभी तो पॉइंटर पिक्चर में आया, पॉइंटर उस एरे के एड्रेस को स्टोर करता है, हम पॉइंटर के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, पर इस str के साथ नहीं खेल सकते, बिकॉज ये एरे है, एरे एड्रेसेस आर कांस्टेंट वैल्यू, यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट, ठीक है। आप पॉइंटर को मॉडिफाई कर सकते हो, एरे के एड्रेस को नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आता, ये भी एरर होता और ये भी एरर होता, L value required because you cannot modify the address. Fine, thank you so much guys, take care.